And we now take you to Rajasthan's Bikaner, where Prime Minister Narendra Modi attended an exhibition on the Amrit Bharat Station scheme. Prime Minister Narendra Modi attending an exhibition on the Amrit Bharat Station scheme in Bikaner, Rajasthan. A little while back, Prime Minister also visited the Karni Mata temple and offered prayers there, and now visiting the exhibition on the Amrit Bharat Station scheme. Prime Minister is also going to lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects today worth over 26,000 crore rupees. The Prime Minister will also inaugurate the redeveloped Deshnok Amrit station under Amrit Bharat station scheme and also flag off Bikaner Mumbai Express train, and will also address a public function later in the day. In fact, Deshnok station, which is going to be inaugurated from a little while from now, is included in the 8 stations which are to be inaugurated by the Prime Minister. The other 7 Amrit stations in the state are Bundi, Mandaigarh, Gagamedi, Govindgarh, Mandawar, Mahua, Fatehpur, Shekhawati and Rajgarh. In fact, the Deshnok railway station serves pilgrims and tourists visiting the Karni Mata temple, among others, and is also the very significant part of the station is that it is inspired with temple architecture and arc and column theme. It is inspired with temple architecture and the temple arches and column theme. In fact, over 1,300 railway stations have been identified for redevelopment under the Amrit Bharat station scheme, and the first batch of 103 Amrit stations will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi himself from the land of Rajasthan. The redeveloped Amrit stations across India, in fact, integrate modern infrastructure with cultural heritage, passenger-centric amenities, including those for persons with disabilities, the Divyangan, and sustainable practices, most importantly, to enhance the travel experience. The major goal under the scheme is to make stations cleaner, more comfortable, and easier to use. Prime Minister Narendra Modi attending the exhibition on the Amrit Bharat station scheme in Rajasthan's Bikaner district. And from a little while from now, he is going to inaugurate the Deshnok railway station. He also offered prayers at the Karni Mata temple and had blessed darshan there before this. To tell our viewers, Deshnok station in Rajasthan is included in the 8 stations which are to be inaugurated by the Prime Minister. And the Deshnok railway station serves pilgrims and tourists visiting the Karni Mata temple, among others, and is inspired with temple architecture and arch and column themes. In fact, to tell our viewers, also 1,300 railway stations have been identified for redevelopment under the scheme, under the Amrit Bharat station scheme, and the first batch of 103 Amrit stations will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi from the land of Rajasthan today.
This is a historic leap towards modernizing the Indian railways. And Prime Minister Narendra Modi, from a little while from now, will inaugurate 103 redeveloped railway stations under the Amrit Bharat Station scheme. The Amrit stations will boost comfort, connectivity and celebrate our glorious culture. Also, inauguration of 103 redeveloped Amrit stations in 86 districts across 18 states and Union Territories of India, developed at a cost of over 1,100 crore rupees. Also, as we told you, over 1,300 stations are being redeveloped with modern facilities designed to reflect regional architecture and enhance passenger amenities under the Amrit Bharat Station scheme. Also, the redeveloped Amrit stations across India integrate modern infrastructure with cultural heritage, passenger-centric amenities, including those for Divyangjan and sustainable practices to enhance the travel experience there. And Prime Minister inaugurating the station now. A short while back, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the redeveloped Deshnok station under the Amrit Bharat Station scheme and flagged off the Bikaner-Mumbai Express train. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the redeveloped Deshnok station under the Amrit Bharat Station scheme and flagged off the Bikaner-Mumbai Express train. The Amrit stations will in fact boost comfort, connectivity and celebrate the glorious culture. Deshnok station in Rajasthan, inaugurated a little while back by Prime Minister Narendra Modi. It is included in the 8 stations which are to be inaugurated by Prime Minister himself, and the other 7 Amrit stations in the state are Bundi, Mandaigarh, Ganganeri, Govindgarh, Mandawar, Mahua Road, Fatehpur, Shekhawati and Rajgarh. The Deshnok railway station, inaugurated a little while back, serves pilgrims and tourists visiting the Karni Mata temple and is inspired with the temple architecture and arch and column theme. A little while back, Prime Minister also offered prayers at the Karni Mata temple, and he is the first Prime Minister to visit the temple. The Deshnok station has been developed incorporating local cultural heritage and architecture of the area. In fact, the significant features of the Amrit Bharat Station scheme is that of designs of redeveloped station buildings are inspired by local culture, heritage and architecture. And Prime Minister there meeting the children at the Deshnok station after the inauguration and after attending the exhibition. The children offering their paintings to the Prime Minister and Prime Minister signing them. A new era for Indian rail infrastructure has started with Prime Minister today inaugurating the Deshnok railway station. And the Amrit stations will boost comfort, connectivity and celebrate our glorious culture. Prime Minister Narendra Modi will also inaugurate 103 redeveloped railway stations under the Amrit Bharat Station scheme today. An inauguration of 103 redeveloped Amrit stations in 86 districts across 18 states and Union Territories of India, which were developed at a cost of 1,100 crore rupees. On in all, over 1,300 stations are being redeveloped with modern facilities designed to reflect regional architecture and enhance passenger amenities under the Amrit Bharat Station scheme.
Up on your screens, Prime Minister Narendra Modi visiting the Deshnok railway station after its inauguration and meeting the children there and signing their paintings. And the children totally, of course, very happy to see their Prime Minister standing with them. A short while back, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the redeveloped Deshnok station in Bikaner district of Rajasthan. He flagged off the Bikaner-Mumbai Expressway also. Little while back, Prime Minister also visited the Karni Mata temple, the small town of Deshnok in Bikaner. In fact, after the tremendous success of Operation Sindoor, Prime Minister is presenting a bouquet of development projects, including 103 Amrit Bharat stations along with Deshnok railway station today to the nation. Prime Minister, after inaugurating the Deshnok railway station and flagged off the Bikaner-Mumbai Express train. Prime Minister will also inaugurate and lay the foundation stone of various projects worth 26,000 crore rupees in Palana and dedicate them to the nation, and also address a public gathering a little while from now. After reaching Deshnok today, Prime Minister Modi visited the Karni Mata temple for darshan, and after that Prime Minister inaugurated the redeveloped Deshnok Amrit station under Amrit Bharat station scheme, and also flagged off the Bikaner-Mumbai Express train. In fact, to tell our viewers, Deshnok station in Rajasthan is included in the 8 stations which have been inaugurated by the Prime Minister. The Deshnok railway station, serving pilgrims and tourists visiting the Karni Mata temple among others, is specially inspired by the temple architecture, by the Karni Mata temple architecture with arches and column theme. In fact, all in all, 1,300 railway stations have been identified for redevelopment under the Amrit Bharat station scheme, and the first batch of 103 Amrit stations will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi from the land of Rajasthan today. The Deshnok station has been developed incorporating local cultural heritage on the demands of the locals and architecture of the area. And after this first batch, another 100 Amrit stations will be ready in coming 8 months. And it is being expected that by 2027, redevelopment of about 500 such stations will be completed. And as we told you, one of the most significant features of the Amrit Bharat station scheme is that the designs of the redeveloped station buildings are inspired by the local culture, heritage and architecture. And all these stations have been developed at a cost of over 1,100 crore rupees under the Amrit Bharat station scheme. And out of these Amrit stations,
19 are located in Uttar Pradesh, 18 in Gujarat, 15 in Maharashtra, 9 in Tamil Nadu, 6 in Madhya Pradesh, and 5 each in Chhattisgarh and Karnataka. In fact, the redeveloped Amrit stations across India integrate modern infrastructure with cultural heritage, passenger-centric amenities, including those for persons with disabilities, and sustainable practices to enhance the travel experience. The basic goal under the scheme is to make the stations cleaner, more comfortable, and easier to use. In fact, Prime Minister will also lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth over 26,000 crore rupees, and also address a public function in Palana in a little while from now. A little while back, Prime Minister Narendra Modi offered prayers at the Karni Mata temple in Deshnok, and Prime Minister Modi is the first Prime Minister to visit the temple. And then he inaugurated the redeveloped Deshnok station under the Amrit Bharat station scheme and flagged off the Bikaner-Mumbai Express train. Prime Minister also visited the exhibition and now will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple developmental projects worth over 26,000 crore rupees, and also address a public function in Palana. The Deshnok railway station has been redeveloped, keeping in mind the rich history and culture of Bikaner, and the station has a special gallery showcasing the war heroes of independent India, which the Prime Minister visited a little while back. In fact, Deshnok railway station is one of the 103 Amrit stations that would be dedicated to the nation by Prime Minister Narendra Modi. The whole bouquet includes development projects worth 26,000 crore rupees. Before the inauguration, Prime Minister visited the Karni Mata Mandir in Deshnok and offered prayers there. And this mandir is the 16th century temple known for its rats called Kaaba. And according to the legend, spotting a white rat is considered to be auspicious for the devotees. The locals there very excited by the visit of the Prime Minister, and the children totally exuberated, excited with the Prime Minister's visit, meeting him and getting their paintings signed by him. People also extremely happy and expressing their solidarity for Operation Sindoor, and Deshnok falls under Bikaner, which is strategically located on the western front, sharing border with Pakistan. In fact, the Karni Mata Mandir, which the Prime Minister visited a little while back and offered prayers, is about 650 years old, and the Prime Minister is the first Prime Minister who visited the Deshnok to offer his prayer at the temple.
A short while back, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the redeveloped Deshnok station. Under the Amrit Bharat station scheme and flagged off the Bikaner-Mumbai Express train also. Prime Minister will also attend a public function in Bikaner where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth over 26,000 crore rupees and also address a public function in Palana. Prime Minister Narendra Modi a little while back offered prayers at the Karni Mata temple in Deshnok. Well, that is the 16th century temple known for its rats called Kaaba. And according to the legend, spotting a white rat is considered to be auspicious by the devotees there. To tell our viewers, Deshnok falls under Bikaner, which is strategically located on the western front, sharing border with Pakistan, and Prime Minister Modi is the first Prime Minister to visit the temple. Prime Minister Modi a little while back also attended an exhibition. Prime Minister Modi visited the Karni Mata temple in Deshnok in Rajasthan, offering prayers there, and he's the first Prime Minister to visit the temple. The 16th century temple is known for its rats called Kaaba. According to the legend, spotting a white rat is considered to be very auspicious by the devotees, and Deshnok falls under Bikaner, which is strategically located on the western front, sharing border with Pakistan. And now let's take you live to Prime Minister Narendra Modi's public function in Bikaner, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple developmental projects worth over 26,000 crore rupees and also address a public function in Palana. का आधार सम्मान का प्रतीक ये साफा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहनाया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक बापू का चरखा, जिसे बीकानेर की परंपरागत शिल्प उस्ता, जिसे उष्ट चर्म पर स्वर्ण मीनाकारी का ये बेहतरीन नायाब दुर्लभ नमूना माननीय को ससम्मान सप्रेम भेंट किया गया। हम हृदय से आपका इस ऐतिहासिक अवसर पर देशनों की धरती पर अभिनंदन करते हैं। और अब आग्रह कर रहे हैं श्रीमती सुभद्रा जी से, स्वयं सहायता समूह की आप सदस्य हैं, लकड़ी के दरवाजे की चौखट और लड्डू गोपाल जी भेंट कर रही है। स्वयं सहायता समूह की सदस्य श्रीमती सुमित्रा जी, आप सभी की तालियों की करतल ध्वनियां समूचे सभा स्थल पर गूंजनी चाहिए, आपके उत्साह स्वरूप, जोश स्वरूप।
और इसके साथ ही हम आग्रह कर रहे हैं श्री मदन सिंह जी से, आप 1973 और 1974 में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे और इसके साथ ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप पुष्प भावित स्वागत कर रहे हैं। प्रकृति की सुंदरतम कृति पुष्पों से माननीय का स्वागत। और इसी कड़ी में अगला आग्रह है भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल हेम सिंह जी से। सेना मेडल आप प्राप्त पैरा कमांडो रहे और आपसे भी आग्रह है आप माननीय का प्रकृति की सुंदरतम कृति पुष्पों से अभिनंदन और अभिवादन। मां करणी के आशीर्वाद से देशनों की धरा का यह सौभाग्य है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय इस धरा पर हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पुनः बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से निवेदन करता हूं स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल। भारत माता की, भारत माता की। भक्ति और शक्ति की संगम स्थली मां करणी की पावन धरा देशनोक और पलाना में भारत के यशस्वी, तपस्वी, युग पुरुष व कर्मयोगी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के साथ मंच की शोभा बढ़ा रहे राजस्थान में सुशासन यात्रा के मार्गदर्शक महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी, विकसित भारत का विकसित राजस्थान बनाने हेतु संकल्पित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाले केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी एवं श्री प्रेमचंद बैरवा जी, भाजपा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष श्री मदेन राठौड़ जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा जी व श्री गजेंद्र सिंह खींवसर जी, राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बागमार जी व श्री विजय सिंह जी, उपस्थित राजस्थान सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सैनिक, मीडिया साथियों और विशाल संख्या में उपस्थित नारी शक्ति व बीकानेर व आसपास के जिलों से आई हुई जनता जनार्दन, आप सभी को घना घना राम राम। व मां करणी की धरा पर आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप 8 जुलाई 2023 को बीकानेर के नौरंगदेसर गांव में आए थे और वहां से आपने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे तथा अन्य विकास कार्यों को देश को समर्पित किया था और वहां पर आपने कहा था कि ये धरती सोने के समान उजड़ी है। इसी की व्याख्या करते हुए हमारे यहां एक कवि ने कहा, यहां जो आसपास रेगिस्तान नजर आता है उसके बारे में और जो यहां से आसमान दिखता है उसके बारे में कहा एक कवि ने, सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रंग भरियो मारो प्यारो राजस्थान। ऐसी धरती पर आपका स्वागत है। आपने रंग भरने के लिए कहा। प्रधानमंत्री जी, एक आप के लिए हम धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं विशेष रूप से कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद शौर्य भूमि बीकानेर में
आज आपका आना निश्चित रूप से हम सभी के हौसलों की बुलंदी व विश्वास को मजबूती प्रदान करने वाला है। आपका आगमन हम सभी के मन मस्तिष्क में नव ऊर्जा का संचार करने वाला है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। जब आपने वहां से कहा था कि रंग भरो नौरंगदेसर से, तो आपका प्रधानमंत्री जी एक सूत्र है काम करने का, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस मंत्र पे चल करके आपने MMDR एक्ट का अमेंडमेंट किया, तो यहां पे पोटाश का उत्खनन संभव हुआ, फर्टिलाइजर के कारखाने लगने की संभावना बढ़ी। हमारे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्सप्लोरेशन का काम हाथ में लिया, तो यहां पे लिथियम, नेचुरल गैस, ऑयल की भी संभावना बढ़ी। जिस स्थान पर हम यहां सभा कर रहे हैं, इसके नीचे लिग्नाइट है। हमारी बीकानेर की जब रियासत थी, तो पहला पावर हाउस का कारखाना इस पलाना में ही लगा था, और अब आप कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में विकास का रास्ता खोलने वाले हो। ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने अभी कहा कि मां करणी की कृपा, आज का जो कार्यक्रम है वो विरासत और विकास का अद्भुत संयोग है और संगम है। मां करणी के मंदिर में दर्शन करने वाले आप भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीकानेर परिवार के जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे ये बताते हुए भी अत्यंत गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जब भारत द्वारा आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, तब सीमावर्ती क्षेत्र बीकानेर के लोगों का आपके मजबूत नेतृत्व पर विश्वास तथा भारतीय सेना के शौर्य व पराक्रम पर अटूट आस्था का ही परिणाम रहा कि हम सभी लोग निर्भीकता पूर्वक हर चुनौती से डटकर मां भारती की सेवा करने के लिए तैयार थे। ऐसी धरती पर आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। प्रधानमंत्री जी, जो आपने मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज ये मंत्र साकार हो रहा है। आज पूरा देश आपके साथ है। देश के सामान्य मानवी को आप पर अत्यंत विश्वास है। संपूर्ण देश आपके विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिणत करने हेतु कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है और बीकानेर भी तैयार है। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अंत में पुनः सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय संबोधन के लिए। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अनुनय कर रहे हैं माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी से। कृपया उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की। देशनोक की धरती में और जोश चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। ये हुई ना बात। आज इस पवित्र भूमि पर हम सब के और विश्व में आज एक नए आयाम करते हुए हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी और वर्चुअली जुड़े सभी राज्यपाल महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा एवं वर्चुअली जुड़े सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी एवं वर्चुअली जुड़े सभी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, हमारे वीर सैनिक, मीडिया के साथी और भारतवर्ष के 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े करीब 3.5 लाख साथियों, 103 अमृत स्टेशन के इस राष्ट्रव्यापी लोकार्पण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। इन 11 वर्षों में
34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई। पुराने आईसीएफ कोच को मिशन मोड में एलएचबी से कन्वर्ट किया। 42,000 नए एलएचबी कोच बनाए और इस तरह के कई इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में लिए हैं। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए एक अच्छा सुगम साधन बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया, स्टेशनों का नवनिर्माण। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने छोटे स्टेशन, मझोले स्टेशन, उन पे ध्यान दिया है, तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, जोरदार एक बार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का इतने बड़े काम के लिए जोरदार अभिवादन कीजिए। खड़े होकर अभिवादन कीजिए एक बार जोर से। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और पिछले अगस्त 2023 और 2024 में प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 1062 स्टेशनों की नींव रखी थी। और आप सब जानते हैं मोदी जी का काम करने का तरीका कैसा है। एकदम नींव भी मोदी जी ही रखते हैं और इनॉग्रेशन भी मोदी जी ही करते हैं। तो इस बड़े कार्यक्रम में आज 103 स्टेशन का एक साथ इनॉग्रेशन देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसके बाद में 100 स्टेशन, उसका अगला बैच भी 8 महीने में तैयार हो जाएगा। आप देख ही रहे पास में जैसलमेर और देश भर में जुड़े हुए सब जगह स्टेशन पे जबरदस्त तेजी से के साथ काम चल रहा है। 2027 तक 500 स्टेशनों का काम कंप्लीट हो जाएगा, इनका नव निर्माण हो जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रेरणादायी नेतृत्व के लिए नमन करता हूं और जिस दृढ़ शक्ति के साथ आपने देश के दुश्मनों को सबक सिखाया है, उसी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जन जन के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आप लेके आ रहे हैं। इन 103 स्टेशनों से जुड़े सभी राज्यपाल महोदय, सभी मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, विभिन्न राज्यों के मंत्री महोदय, सांसद महोदय, एमएलए महोदय, सरकार एवं समाज के करीब 840 गणमान्य व्यक्ति जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और 103 लोकेशन पर 3.5 लाख के आसपास हम सभी साथी जो ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा से अनुरोध कि वे आज के इस अवसर पर अपना संबोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, करणी माता की, तीर्थधाम कोलायत की, भगवान जम्बेश्वर जी की, जसनाथ जी महाराज की, कनौट माता जी की। आज के इस कार्यक्रम में बीकानेर की इस पवित्र भूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजस्थान में आने पर और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारने पर मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
माननीय मंच पर विराजमान हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हरिभाई बागड़े जी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी, माननीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, मंच पर सम्मानित माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीपसर जी, राज्य महिला मंत्री मंजू बागमार जी, राज्य मंत्री श्री विजय सिंह जी और देश भर से इस बीसी के माध्यम से जुड़े हमारे सभी राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सभी उप मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय, सभी को मैं इस बीसी में जुड़ने पर और राजस्थान में कार्यक्रम होने पर आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये राजस्थान, ये वीर भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है, पर्यावरण की रक्षा करने वाली मां अमृता देवी की धरती है और त्याग की मूर्ति माई पन्ना धाय की धरती है। इस भक्ति और भक्ति की धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की मैं आपको बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि पहलगांव में निर्दोष नागरिक पर हुए अमानवीय हमले का जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन भूल ना सकेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया है, क्योंकि देश आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो हुआ है देश की सेना और देश के सैनिकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये पहलगांव की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता को स्थगित किया। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब मिला है, निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं दुनिया में इसकी एक मिसाल बनी है कि जिस तरह से उनको आतंकियों को और उनके ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया है। मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने सीमावर्ती क्षेत्र के जितने लोगों से बात की, वे देश की बेटियों के न्याय के लिए सीमा पर जाने को तैयार थे। जैसे हमारे पूर्व सैनिक, मैंने सेना के लोगों से भी बात की। क्षेत्र में नागरिकों का जो जज्बा था वो देखने को मिलता था। आज इतनी गर्मी में ये जन सैलाब जो उमड़ा है वो इस बात को जाहिर करता है कि राजस्थानवासी प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने को, आपको सुनने के लिए कितने आतुर हैं। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहना चाहता हूं कि आज अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पुनर्विकास 103 स्टेशनों के उद्घाटन हुआ है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में राजस्थान के अंदर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और दूरदृष्टि से प्रदेश को पानी के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में पानी की आवश्यकता है, राम जल सेतु लिंक परियोजना, ईआरसीपी, यमुना समझौता की सौगात मिली। प्रदेशवासियों की तरफ से मैं इसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं, हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर के लिए 3,400 करोड़ रुपए बजट का देने का काम भी किया है। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कुसुम योजना की सफल क्रियान्विति के लिए 1,500 मेगावाट क्षमता स्थापना से आज 41 में से 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा गत 15 माह में राज्य की उत्पादन क्षमता में लगभग 3,800 मेगावाट की वृद्धि की गई है। हम प्रदेश में पंप स्टोरेज की 5 परियोजना पर केंद्रीय पीएसयू और 3 परियोजना पर निजी क्षेत्र की मदद से काम कर रहे हैं। साथ ही 4 बैटरी स्टोरेज परियोजना को मार्च 2026 तक पूरा करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, अगर इनका विकास होगा तो देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। आपकी प्रेरणा से हम इन चारों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रथम चरण में 5000 गांव के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 96,000 से अधिक शहरी व ग्रामीण आवास बनाए गए तथा 5,48,000 से ज्यादा नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। मैं इनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आवास विहीन जो बीपीएल, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों के व्यक्तियों को 26,000 पट्टे वितरित किए गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। हम कहते हैं हमारी अगर महिला का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश और देश का उत्थान होगा। लखपति दीदी योजना में 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 7,80,000 लखपति दीदी बनाई गई हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,30,000 बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे किसान के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी योजना है या बिजली की हो या पानी की हो, हमारे किसान को ध्यान में रखते हुए की हैं। गेहूं के समर्थन मूल्य में बोनस देकर हमने पिछले साल 12 लाख मैट्रिक टन तथा इस वर्ष 17 लाख मैट्रिक टन गेहूं अधिक खरीद की है। किसान सम्मान निधि के 76 लाख से अधिक किसानों को 6,800 रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। हमने 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया है। हम कहते हैं कि हमारा युवा का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। हमने 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति दे दी गई है तथा करीब 1,87,000 से अधिक पदों पर भर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। रोजगार मेलों के माध्यम से 65,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर ये डबल इंजन की सरकार जल कल्याणकारी नीतियों की योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। हमारी केंद्र की योजना है, उनका पूरा लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जो सौगातें की हैं वो अभूतपूर्व हैं। 40 साल और 50 साल से जो सौगात नहीं मिली थी वो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। अंत में प्रदेशवासियों की ओर से आप सभी का अंत में बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। आभार, बहुत बहुत आभार माननीय। देवियों और सज्जनों, हमारे भारतवर्ष के अमृतकाल के सारथी, जन जन के प्रिय नेता, दूरदर्शी मार्गदर्शक और सच्चे कर्मयोगी हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हम अनुनय करते हैं कि देश के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन और रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, इसके साथ ही राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण।
देवियों और सज्जनों, आज का ये अपार जन सैलाब हमारे भारत के असाधारण नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है, जिनके उत्कृष्ट नेतृत्व और अथक प्रयासों से राजस्थान और रेलवे की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल रही है। और आइए अब नजर डालते हैं आज देश में विकास की गाथा लिखते प्रोजेक्ट्स पर बनाई गई 2 लघु फिल्मों पर, जो अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के साथ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार परियोजनाओं को दर्शाती हैं। भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रही है और बन रही है साक्षी नित नई उपलब्धियों की, विकास की नई ऊंचाइयों की। दक्षिण में शानदार पाम्बन ब्रिज से लेकर उत्तर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज तक, पश्चिम में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वोत्तर में रेल के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल जैसी आधुनिक ट्रेनों तक रेलवे की बीते 10-11 वर्षों की अभूतपूर्व प्रगति एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन का भी प्रतिबिंब है। आधुनिक रेलवे की इसी श्रृंखला का एक मुख्य हिस्सा है हमारे रेलवे स्टेशन। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, अमृत भारत स्टेशन योजना। लक्ष्य था देश के 1300 से अधिक स्टेशनों की दशा सुधारना, अव्यवस्थाओं को सुविधाओं से बदलना और उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करना। विकास और बदलाव का ये सफर आज एक अहम मुकाम पर पहुंचा है, जब प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, बिहार समेत 18 राज्यों में 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का। दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में हैं। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। ये सभी स्टेशन विरासत और विकास दोनों के प्रतीक हैं। यहां स्थानीय विरासत को भी सहेजा गया है और यात्रियों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए हर एक आवश्यक सुविधा भी है। एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग मार्ग हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी सेंटर हैं। मॉडर्न फूड कोर्ट्स, रूफ प्लाजा, वेटिंग रूम्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्हीलचेयर सुलभ रैंप बनाए गए हैं। दिशा निर्देशों के लिए ब्रेल साइनेज लगाए गए हैं। साथ ही सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल भी बनाती है। ये स्टेशन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में बनाए गए हैं। स्टेशन के साथ ही चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग स्पेस और चौड़े फुटओवर ब्रिज सभी बनाए गए हैं। इन स्टेशनों से लोगों को सुखद और बेहतरीन यात्रा अनुभव मिलेगा। साथ ही ये आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी उभरेंगे। अमृत भारत स्टेशनों के साथ ही आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं सूरतगढ़, फुलेरा, उदयपुर,
फलौदी और समदड़ी की इलेक्ट्रिक लाइनें देश को समर्पित। चूरू और सादुलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास और बीकानेर और मुंबई के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर के शुभारंभ, जिससे विकसित भारत के भागीदार के रूप में भारतीय रेल ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में गत दशक रहा है प्रगति का, विकास का और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का। इसका लाभ राजस्थान को भी मिला है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 23,400 करोड़ रुपए से अधिक की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे हैं। फौज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक तेज और बेहतर आवाजाही के लिए तनौट, रामगढ़, जैसलमेर, मोकल सरकारी तला, बाड़मेर से गागरिया एवं गागरिया से मुनाबाव के चौड़ाईकरण कार्य से देश की सामरिक शक्ति को बल मिलेगा। श्री गंगानगर, राय सिंह नगर के चौड़ाईकरण से सीमावर्ती राज्य पंजाब और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अमृतसर जामनगर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर पर देवगढ़ से राजस्थान गुजरात सीमा से कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। 4 लेन भीम से बघाना, मादा की बस्ती से गोमती और खेरवाड़ा से डूंगरपुर सागवाड़ा तथा 12 राज्य राजमार्गों के विकास कार्य से शहरों और गांवों से आवाजाही बेहतर होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। टूरिज्म को, यहाँ के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। शिम्भू का भुर्ज सोलर प्लांट से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। नीमच सोलर पार्क एवं बीकानेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम फतेहगढ़ 2 में परिवर्तन क्षमता के विस्तार और राजपुरा एवं सरदा में ग्रिड सब स्टेशन और उनकी लाइनों से राजस्थान में बिजली की आपूर्ति पूरी होगी। माही परियोजना के सुदृढ़ीकरण से किसानों को 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा। राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज से आरोग्य सेवा में सुधार आएगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं म्याजलार जैसलमेर एवं सुंदराम म्याजलार खंड और गोटन साथिन राज्य राजमार्ग के विकास से आवाजाही सुगम होगी। अजमेर नागौर खंड के पुष्कर बाईपास पर 3 BUP से यहाँ लगने वाले जाम से निजात मिलेगा। जैसलमेर बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम तथा कलासर, नावा और बीकानेर में सोलर प्रोजेक्ट से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ऐसी कई परियोजनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार अमृत काल में राजस्थान को संपन्न राज्य बनाएगी। देवी और सज्जनों, अब वो क्षण आ गया है जिसकी आप सभी अत्यंत उत्सुकता और आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम सादर निवेदन करते हैं समूची दुनिया में प्रत्येक भारतवासी का गौरव बोध बढ़ाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कि आज के इस ऐतिहासिक समारोह में हम सभी को अपने ऊर्जस्वी और ओजस्वी विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी।